ایک بار ذرا سوچیں، اس وقت اگر آپ انتخاب کر سکتے تو کیا آپ ایک ہجوم والے محفل میں جاتے یا اپنے گھر کے پرسکون کونے میں بیٹھ کر اپنا پسندیدہ کام کرتے؟ اگر آپ کے دل سے یہ جواب آئے کہ گھر میں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ ویڈیو مکمل طور پر آپ کے لیے ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال بھی آتا ہے۔ آپ شاید خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ کیا سب لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں غیر سماجی ہوں؟ کیا میں واقعی کمزور ہوں؟ آج کی اس طویل گفتگو میں ہم ان سوالات کی گہرائی میں جائیں گے۔ صرف یہی نہیں، آپ آج اپنے بارے میں ایسی کچھ باتیں جانیں گے جو شاید آپ کو زندگی بھر کسی نے نہیں بتائیں۔ اس لیے توجہ سے شروع سے آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہر حصہ میں ایسی بات ہوگی جو آپ کی زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل سکتی ہے۔ اچھا، ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ بچپن سے ہی ہمارے معاشرے نے ہمارے ذہن میں ایک تصور بٹھا دیا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے، زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، پارٹی کرتا ہے، خوش مزاج رہتا ہے، وہی اصل زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور جو تھوڑا خاموش رہتا ہے، گھر میں رہنا پسند کرتا ہے، لوگوں کے ہجوم سے بچتا ہے، اسے غمگین مزاج، غیر سماجی یا مغرور کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ فیصلہ کتنا درست ہے؟ کیا یہ تصور واقعی حقیقت کے مطابق ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم 4 گہرے اسباب کا تجزیہ کریں گے۔ پہلا، کیوں گہری سوچ رکھنے والے لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور کیا یہ واقعی طاقت کی علامت ہے؟ دوسرا، تنہائی میں سکون پانا کیا واقعی فرار ہے؟ تیسرا، ماضی کے تجربات کیسے انسان کی شخصیت بناتے ہیں؟ اور چوتھا، اسلام اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آخر میں ایک اہم تنبیہ بھی ہوگی جسے سننا ضروری ہے۔ پہلا سبب شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی زیادہ تر بڑی دریافتیں، بڑے ادبی کام، بڑے فلسفے، بڑے فن پارے، ان کے پیچھے کون لوگ تھے؟ تقریباً ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ طویل وقت اکیلے رہے۔ جب نیوٹن نے کششی ثقل دریافت کی، وہ اکیلا تھا۔ آئنسٹائن کہتے تھے کہ ان کے بہترین خیالات خاموشی میں آتے تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے طویل عرصہ تنہائی میں گزار کر احیاء علوم الدین جیسی عظیم کتاب لکھی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ بالکل نہیں۔ نفسیات میں ایک اصطلاح ہے، ہائی سینسٹیو پرسن یا HSP۔ محقق ایلین آرون نے کئی دہائیوں کی تحقیق سے بتایا کہ دنیا کے تقریباً 20% لوگ اس خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ گہرائی سے سوچتے ہیں، دوسروں کے جذبات زیادہ محسوس کرتے ہیں، وہ باریک چیزیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے وہ انہیں محسوس کرتے ہیں، اور زیادہ شور یا ہجوم انہیں ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے۔ یہ لوگ پارٹی یا ہجوم سے بچتے ہیں کیونکہ وہ کمزور نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دماغ ایک ساتھ اتنی زیادہ معلومات کو تحلیل کرتا ہے کہ اضافی تحریک ان کے لیے تھکا دینے والی بن جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، وہ انسان جو کم بولتا ہے لیکن جب بولتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے جو دل میں رہ جاتی ہے۔ وہ انسان جو ہجوم میں گم نہیں ہوتا بلکہ خاموشی سے کونے میں بیٹھ کر پورے ماحول کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ انسان جس کے دوست کم ہوتے ہیں لیکن جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے۔ ان لوگوں میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ ایک نایاب قسم کی گہرائی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کو سطحی نظر سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ان کی خاموشی میں ایسی طاقت ہوتی ہے جو بہت سے شور کرنے والوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں دوسرے سبب کی طرف۔ معاشرہ کہتا ہے کہ جو اکیلا رہتا ہے وہ ضرور کسی سے بھاگ رہا ہے، لیکن کیا یہ بات ہمیشہ درست ہے؟ ذرا سوچیں، جب ایک مصنف اپنے کمرے میں بیٹھ کر لکھتا ہے، کیا وہ بھاگ رہا ہے؟ جب ایک سائنسدان اپنی لیبارٹری میں اکیلا کام کرتا ہے، کیا وہ بھاگ رہا ہے؟ جب ایک مسلمان فجر کے بعد اکیلا بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیا وہ بھاگ رہا ہے؟ نہیں، وہ سب ایک کام کر رہے ہیں، وہ خود کو دوبارہ توانائی دے رہے ہیں۔ نفسیات میں ایک تصور ہے، سولیچیوڈ یا مثبت تنہائی۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان اپنی مرضی سے سکون کے ساتھ اپنے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اس سے اس کی ذہنی طاقت بڑھتی ہے۔ مشہور ماہر نفسیات ابراہام ماسلو نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ پختہ لوگ ایک خاص بات میں مشترک ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے میں آرام محسوس کرتے ہیں۔ اکیلے رہنا کوئی لعنت نہیں بلکہ پختگی کی علامت ہے۔ جب انسان اپنے ساتھ وقت گزارتا ہے تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ پہلی بات، وہ اپنے اصل خیالات سن پاتا ہے، کیونکہ باہر کا شور نہ ہو تو اندر کی آواز واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، وہ اپنے جذبات کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ رہنے میں ہم اکثر دوسروں کے جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ تیسری بات، زندگی کے اہم فیصلے واضح طور پر کیے جا سکتے ہیں،
और चौथी बात, दूसरों की तारीफ या तनकीद पर इन्हिसार किए बगैर अपनी कदर खुद समझ आती है। ये खुद इन्हिसारी ही असल इज्जत नफ्स की बुनियाद है। दरख्त उसी वक्त तूफान में खड़ा रहता है जब उसकी जड़ें गहरी हों। तन्हाई में गुजारा हुआ वक्त इंसान की जड़ों को गहरा करता है। तीसरा सबब कुछ मुख्तलिफ और ज्यादा हसास है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की कहानियां हैं जो शायद आपकी अपनी कहानी से भी मिलती हैं। बहुत से लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते। शायद कभी किसी पर एतमाद किया गया और उसने इस एतमाद का फायदा उठाकर तकलीफ दी। शायद ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां उनके जज्बात को अहमियत नहीं दी गई। शायद कोई रिश्ता ऐसे टूटा जो आज भी दिल में कांटे की तरह चुभता है। शायद आपसे कुछ ऐसी बातें कही गईं जो आज भी जहन में घूमती हैं। नफ्सियात में उसे इवाइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कहा जाता है। जब इंसान बार बार ज़हनी सदमा बर्दाश्त करता है तो उसका दिमाग मुस्तकबिल के सदमे से बचने के लिए एक दिफाई निज़ाम बनाता है। वो लोगों से दूर हो जाता है। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि दिमाग की बका की हिकमत अमली है। लेकिन यहाँ एक अहम बात कहना चाहता हूँ, माजी का ज़ख्म आपकी शनाख्त नहीं है। अगर आप ऐसे शख्स हैं जो माजी के दर्द की वजह से लोगों से दूर हो गए हैं तो जान लें कि वो दर्द आपको तोड़ नहीं सका, बल्कि उसने आपको एक सबक दिया है। वो सबक ये है कि किस पर एतमाद करना है, कितना एतमाद करना है और कब खुद को बचाना है। जो लोग सबसे मुश्किल जंगें लड़ते हैं वही सबसे ज्यादा गहरे इंसान बनते हैं। इनमें हमदर्दी ज्यादा होती है क्योंकि वो दर्द को अंदर से जानते हैं। वो आसानी से लोगों को जज नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक नजर न आने वाली जंग चल रही होती है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे अहम पहलू की तरफ। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? कुछ लोग समझते हैं कि इस्लाम हमेशा लोगों के साथ मिलने की हिदायत देता है और कुछ समझते हैं कि इस्लाम मुकम्मल तन्हाई की तरफ ले जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों में से कोई भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। इस्लाम तवाज़ुन का दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लोगों के साथ रहता है और उनकी तकलीफ पर सब्र करता है वो उससे बेहतर है जो लोगों के साथ नहीं रहता और ना उनकी तकलीफ पर सब्र करता है। ये हदीस मुस्नद अहमद और इब्न माजा में रिवायत हुई है। ये हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि लोगों के साथ रहना और उनकी तकलीफ बर्दाश्त करके उनका फ़ायदा करना बेहतर है। लेकिन ये सिर्फ मिलने जलने की बात नहीं बल्कि नीयत की बात है। नीयत खैर की है, नीयत ताल्लुक़ कायम रखने की है, नीयत लोगों की भलाई की है। दूसरी तरफ इस्लामी तारीख में बहुत से बड़े उलमा और सालेहीन ने कहा है कि फितना बढ़ जाए तो आर्जी तन्हाई बेहतर है। अल्लाह तालीज़ ने कुरान में फरमाया सूरह कहफ की आयत 18 में, और जब तुम उनसे जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं अलग हो जाओ तो गार में पनाह ले लो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी पैदा कर देगा। असहाबी कहफ के नौजवानों ने फितना के वक्त अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार में पनाह ली और अल्लाह तालीज़ ने उनके इस फैसले की तारीफ की। यानी जब माहौल इतना जहरीला हो जाए कि लोगों के साथ रहने से ईमान, किरदार और ज़हनी सेहत मुतासिर हो तो उस माहौल से दूर होना बहादुरी है, कमजोरी नहीं। लेकिन यहाँ असल सवाल नीयत का है। ईमान और किरदार की हिफाजत के लिए दूरी रखना और तकलीफ से भागकर जिम्मेदारी से बचना, उन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कभी कभी हिरा की गार में जाते थे और तन्हाई में वक्त गुजारते थे। वही से पहले भी आप तन्हाई को पसंद करते थे। ये आपकी कमज़ोरी नहीं थी बल्कि अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक़ का एक रास्ता था। अब ज़रा मौजूदा मुआशरे की तरफ देखें। हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहां सोशल मीडिया रोज़ हमें बताता है कि खुश इंसान वो है जो मुसलसल बाहर जा रहा है, तस्वीरें ले रहा है, लाइक्स हासिल कर रहा है, फॉलोअर्स बढ़ा रहा है। लेकिन तहकीक कुछ और कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक जो 85 साल तक जारी रही और जो इंसानी खुशी की सबसे तवील तहकीक मानी जाती है, उसमें यह पाया गया कि इंसान की खुशी का सबसे बड़ा जरिया गहरे और बामानी ताल्लुकात हैं, ना कि दोस्तों की तादाद। एक शख्स जिसके 2 या 3 गहरे ताल्लुक हों वो उस शख्स से ज्यादा खुश और जहनी तौर पर सेहतमंद होता है जिसके पास 100 लोग हों। अब सोचें, हम में से बहुत से लोगों के हजारों फॉलोअर्स होते हैं लेकिन मुश्किल वक्त में एक भी साथ नहीं होता। और कुछ लोगों के सिर्फ 2-3 दोस्त होते हैं लेकिन वो रात 3 बजे भी कॉल उठा लेते हैं। असल समाजी जिंदगी कौन सी है? जवाब आप खुद जानते हैं। अब आते हैं इस अहम तंबीह की तरफ जो इस गुफ्तगू को मुकम्मल करती है। हर तन्हाई फायदेमंद नहीं होती। ये एक हकीकत है जिसे मानना जरूरी है। जब तन्हाई सेहतमंद हो तो वो इंसान को ताकत देती है, ताजगी देती है और गहराई अता करती है।
लेकिन जब तन्हाई बीमारी बन जाए तो वो इंसान को तबाह कर देती है। कैसे पहचाने कि आपकी तन्हाई सेहतमंद है या नुकसानदेह? कुछ अलामात हैं जिनसे आपको खबरदार होना चाहिए। अगर अकेले रहने के बाद लोगों से बात करते हुए अजीब लगे या बर्दाश्त ना हो, अगर हर चीज में दिलचस्पी खत्म हो जाए, अगर सुबह उठने का दिल न करे, अगर लगे कि दुनिया में कोई आपको नहीं जानता या समझता, अगर दिल में मौत के ख्यालात आएं, तो ये आम तन्हाई नहीं बल्कि डिप्रेशन की अलामत है। और इस हालत में आपको किसी काबिले एतमाद शख्स से बात करनी चाहिए, किसी माहिर से मदद लेनी चाहिए। इस्लाम में कहा गया है कि इंसान एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की तरह हैं, जब एक उज़्व को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। हम एक दूसरे का हिस्सा हैं, इसलिए अगर आप तकलीफ में हैं तो उसे छुपाना जरूरी नहीं। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि बहादुरी है। अब सवाल ये है कि हम क्या करें, हम ये तवाज़ुन कैसे पैदा करें? पहला काम, खुद से ईमानदारी से सवाल करें, क्या मैं सुकून के लिए अकेला रहता हूँ या खौफ की वजह से? क्या मैं खुद को तलाश करने के लिए तन्हाई इख्तियार करता हूँ या जिंदगी की जिम्मेदारियों से भागने के लिए? उन दो सवालों के सच्चे जवाब आपको बहुत कुछ बता देंगे। दूसरा काम, अपनी तन्हाई के वक्त को बामकसद बनाएं। कुरान पढ़ें, लिखें, सोचें, कुछ नया सीखें, अपनी जिंदगी की मंसूबाबंदी करें। जिस तन्हाई में कोई फायदा ना हो वो सस्ती है, लेकिन जिस तन्हाई में आप बढ़ रहे हों वो कीमती है। तीसरा काम, कम से कम 2 या 3 लोगों के साथ गहरा ताल्लुक़ रखें। तादाद नहीं मेयार। ऐसे लोग तलाश करें जो आपको जज न करें बल्कि समझें। चौथा काम, अपने माजी के जख्मों को नज़रअंदाज ना करें बल्कि उन्हें कबूल करके आहिस्ता आहिस्ता शिफा की तरफ बढ़ें। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर छोटा कदम अहम है। पांचवा और शायद सबसे अहम काम यह है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करें, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है लेकिन अल्लाह कभी नहीं देता। इंसान छोड़ सकता है लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह तालीज़ ने कुरान में फरमाया, सूरह रात की आयत 28 में, जान लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। वो तन्हाई जिसमें अल्लाह मिल जाए वो सबसे कीमती तन्हाई है। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हमेशा बाहर नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी कामयाबी अपने अंदर सुकून तलाश करना है। जो शख्स अपने साथ सुकून से रह सकता है वो दुनिया के बहुत से तूफानों में भी साबित कदम रह सकता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कम बोलते हैं, कम लोगों के साथ रहते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत करते हैं, तन्हाई में वक्त गुजारते हैं लेकिन उसमें खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आप कमजोर नहीं हैं, आप मुख्तलिफ हैं। और मुख्तलिफ होना हमेशा मसला नहीं होता, कभी कभी यही सबसे बड़ा तोहफा होता है। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि तन्हाई आपको अंदर से खाली कर रही है, खुशी खत्म हो रही है, जिंदगी में दिलचस्पी कम हो रही है, तो आज ही किसी से बात करें, किसी काबिल एतमाद दोस्त, खानदान के किसी फर्द या किसी माहिर से, क्योंकि मदद मांगना भी एक बहादुर कदम है। और अपनी शिनाख्त का ये सफ़र एक सच्चे सवाल से शुरू होता है। शायद आज इस सफ़र का पहला कदम आप पहले ही उठा चुके हैं। आप क्या समझते हैं? क्या आपकी तन्हाई आपको ताकत देती है या कमज़ोर करती है? कमेंट्स में अपनी सच्ची राय दें, क्योंकि शायद आपकी बात किसी और के लिए रास्ता दिखा दे।